Hey guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. My name is Dipanita. In today's video, I will be sharing with you guys a complete beginner's makeup kit under ₹300. अगर तुम लोग लाइक न्यू हो मेकअप पे एंड कंफ्यूज्ड हो कि क्या क्या मेकअप किट पे होना चाहिए, देन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी तुम लोगों के लिए बिकॉज दीज आर द ओनली प्रोडक्ट्स दैट यू विल बी नीडिंग इन केस यू आर अ बिगिनर और यू जस्ट वांटेड टू स्टार्ट विथ मेकअप. ऑल्सो कीप वन थिंग इन माइंड दैट प्राइस सस्ता है तो क्वालिटी भी सस्ती होगी. अ बिग नो. जो भी प्रोडक्ट्स मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज़ किए हैं, दैट्स वाई मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. ऑब्वियसली ₹300 के अंदर बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाएगी, बट कौन सी प्रोडक्ट लेनी है एंड कौन सी नहीं लेनी है इस वीडियो को देखने के बाद वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू गाइज 2 ऑप्शंस फॉर ईच कैटेगरी, लाइक फॉर फाउंडेशन, फॉर प्राइमर, फॉर एवरीथिंग. स्किन केयर से लेके मेकअप सेटिंग स्प्रे तक सब कुछ अंडर ₹300 है. इस बार मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, ठीक है. तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगी एंड हम लोग डायरेक्टली वीडियो पे चले जाते हैं. देखते हैं कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी. टू अचीव दैट फ्लॉलेस मेकअप इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ योर स्किन केयर. You guys know that I suffer a lot with acne, so it's really important for me to incorporate such products that will help me to reduce my pimples. Recently got my hands on these products by St. Ives. Let's talk about the face wash first. So this is the St. Ives Pimple Clear Face Wash with 2% salicylic acid enriched with tea tree. This face wash has got gel consistency which transfers into a foam texture. For your information, let me tell you guys that this face wash is marked as US's #1 pimple clearing face wash. This face wash helps removing 99% of pimple causing germs. It deep cleanses our skin and helps to get rid of blemishes and marks. This face wash deeply cleanses our skin without making it dry or rough. And also the pump packaging ensures hygiene. So I have washed my face and you guys can see that my skin is not looking dehydrated, dry or rough. Rather there is a subtle healthy glow. Then I have this St. Ives Pimple Clear 3-in-1 face scrub enriched with 2% salicylic acid, tea tree and walnut. So both the products has got 2% salicylic acid and tea tree. As this contains walnut, it deeply cleanses our skin. It removes blackheads and whiteheads. This face scrub prevents pimples, improves skin texture and also provides even skin tone. It removes blackheads and whiteheads. Also, it's very gentle on our skin. जो बीड्स है वो भी बहुत ही माइल्ड है तो प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस फेस स्क्रब इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिमूविंग सन टैन. यू विल फील दैट चेंजेस आफ्टर यूजिंग दिस फेस स्क्रब. योर स्किन विल फील क्लीन एंड क्लियर immediately after using this one. See that how fresh and clean my skin is looking after using this face scrub. For the primer, I have 2 options. One is this Blue Heaven oil-free flawless makeup based primer, which will fill your pores and fine lines, and it will provide you silk matte finish. And the other one is this Nykaa Prep Me face primer, which will tone, smoothen and perfect your skin. Now the thing is, ये bigger bottle है, but they have a smaller size. I think that one retails for ₹199 or something. दोनों ही silicone based makeup primers है. That's why it will fill your pores and it will give you that smooth finish. Also इसकी consistency थोड़ी सी light है comparing to this one. ये थोड़ी सी thick consistency की है. दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के primers है, तो it's completely up to you कि तुमको कौन सी लेनी है. Before showing you the foundation, let me tell you guys few things. In case you are not into foundation and don't like coverages at all, then go for BB creams और CC creams. उससे कवरेज तो कम मिलेगी, साथ ही साथ स्किन लाइक फिनिश तुम लोगों को मिल जाएगी. ओके, फाउंडेशन अगेन मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट है ये Maybelline Fit Me फाउंडेशन. मैं जो शेड यूज़ करती हूँ वो है 228 सॉफ्ट टैन. इसकी स्मॉलर एक ट्यूब आती है जो कि ₹299 की है, तो तुम लोग वो भी ले सकते हो. एंड द सेकेंड फाउंडेशन दैट आई हैव इज दिस Inside Cosmetics HD फाउंडेशन which will provide you high coverage and dewy finish. So this one is great for dry skin and this one is great for both, like all the skin types. डेली वेयर के लिए फाउंडेशन अगर लेनी हो देन फिट मी फाउंडेशन इज द बेस्ट ऑप्शन. कमिंग टू द इनसाइड कॉस्मेटिक्स HD फाउंडेशन, लाइक अंडर ₹300 HD फाउंडेशन आप लोगों को मिल जाती है. इनसाइड कॉस्मेटिक्स HD फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होती है, जबकि Maybelline Fit Me फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है. नेक्स्ट आते हैं कंसीलर पे, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल. इन केस यू आर गोइंग फॉर अ हाई कवरेज फाउंडेशन देन समटाइम्स कंसीलर की जरूरत नहीं होती है, तो अगर ज़रूरत हो तभी कंसीलर लो, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी. So I have these 2 options for you guys. So the first one is this Insight HD concealer and the second option is this Miss Claire full coverage makeup concealer. दोनों ही हाई कवरेज कंसीलर्स हैं. इसकी कवरेज बिल्डेबल है, तो अगर शेयर चाहो तो शेयर रख सकते हो या तो फुल कवरेज कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कवरेज एकदम फुल कवरेज है.
बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट लगती है। इसको मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज जो शेड है वो मेरी स्किन टोन मैच नहीं है। जबकि ये वाली कंसीलर जो है ना मिस क्लेयर की, इसकी शेड मेरी एग्जैक्ट स्किन टोन मैच है। तो समटाइम्स मैं इसको कलर करेक्शन के लिए यूज़ करती हूँ, या तो अगर मुझे फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी हो देन डायरेक्टली मैं सिर्फ इसको हल्का सा डैप कर लेती हूँ ऑल ओवर माई फेस एंड आई एम ऑल गुड टू गो। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन एंड अंडर आइज बहुत जल्द क्रीज हो जाती है मेरी तरह, देन गो फॉर द इनसाइड HD1। अदरवाइज ये भी ले सकते हो, बट इसको ना बहुत अच्छे से सेट करनी पड़ती है, विच इज़ अनदर टास्क। अगर प्रॉपरली सेट नहीं करते हो देन समटाइम्स क्रीज हो जाती है। अगर कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो देन एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर कंसीलर की तरह यूज़ कर रहे हो देन यू हैव टू ब्लेंड इट प्रॉपरली एंड सेट इट ऑब्वियसली। चलो अब बारी आती है पाउडर्स की। तो मेरे पास दो ऑप्शंस है एज यूजुअल, एक कॉम्पैक्ट पाउडर है एंड एक लूज पाउडर है। तो ये है मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड नेचुरल बफ, विच इज़ माई एग्जैक्ट स्किन टोन मैच। तो मैं इसको टचअप्स के लिए यूज़ करती हूँ एंड डेली वेयर के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। प्राइस भी बहुत लेस है, तो अगर आप बिगिनर हो या तो टीनेजर हो देन डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लूज पाउडर्स पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉम्पैक्ट पाउडर से ज़्यादा लूज पाउडर्स पसंद आती है टू सेट माई मेकअप। बट अगर मैं लाइक टचअप्स के लिए बात करूँ तो टचअप्स के लिए लूज पाउडर्स उतनी अच्छे से वर्क नहीं करती हैं, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट पाउडर्स की ज़रूरत होगी। तो एंड डेली वेयर के लिए ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट पाउडर्स आर बेस्ट ऑप्शन। मैं डेली कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो या तो कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए ये ले सकते हो, या तो अगर लूज पाउडर चाहिए हो देन मार्स की ये ट्रेंड सेटिंग पाउडर ले सकते हो, विच इज़ इन द शेड बनाना एंड द शेड बनाना हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल येलो अंडरटोन टू इट। ऑब्वियसली पफ के साथ आती है, तो ये कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, फ्लैशबैक नहीं करती है, प्रॉपरली अंडर आइज को सेट करती है। इफ़ यू आर फ्रॉम मीडियम टू डार्क स्किन टोन कैटेगरी देन द बनाना शेड विल गो परफेक्टली विथ योर स्किन टोन। एंड अगर येलो अंडरटोन की हो, गोल्डन अंडरटोन की हो देन डेफिनेटली येलो पाउडर से ज़्यादा सूट होती है। ऑल्सो एम नॉट रियली इनटू बेकिंग, मैं मेरी अंडर आइज पे बहुत ही लेस कॉम्पैक्ट पाउडर या तो लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। बट इफ़ यू आर समवन हु लव्स टू बेक देयर मेकअप देन ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छी है। देन आते हैं ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टोरिंग पे। अगर बिगिनर हो देन क्रीम कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है, प्रॉपरली अगर ब्लेंड नहीं करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अनइवन दिखती है एंड पैची दिखने लगती है स्किन। सो गो विथ अ पाउडर ब्रॉन्जर और अ पाउडर कॉन्टोर प्रोडक्ट। मैं ब्रॉन्जर ज़्यादा प्रेफर करूँगी कॉन्टोर से भी ज़्यादा, बिकॉज ब्रॉन्जर से क्या होती है कि आप हल्का सा अप्लाई कर लो ना तो भी आपकी फेस बहुत ही चिजल दिखती है। इन केस यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ ब्रॉन्जर इनिशियली बट प्रैक्टिस करनी हो देन गो विथ अ ब्राउन आई शेडो, बट मेक श्योर कि वो कूल टोन ब्राउन आई शेडो है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ना हो, लाइक डार्क ब्राउन आई शेडोज वो सब मत लेना, प्रॉपर स्किन टोन के साथ जाए ऐसी ब्राउन आई शेडो लो एंड देन उससे प्रैक्टिस करो। जब हो जाएगी देन यू कैन बाय एनी ब्रॉन्जर्स। लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे पास 300 रुपीज़ के अंदर ना कोई भी अच्छे से ब्रॉन्जर नहीं है, तो दैट्स वाई मैं तुम लोगों को नहीं दिखा रही हूँ ब्रॉन्जर। अभी ब्लशेस देख लेते हैं। अगेन दो ऑप्शन है मेरे पास। फर्स्ट है ये स्टेको की चिकी गर्ल्स ब्लश इन द शेड पिंक डिवा एंड द सेकेंड ब्लश दैट आई हैव इज दिस ब्लू हेवन शिमर मैट ब्लश। इसकी शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्यूटीफुल कोरल शेड है दैट विल कॉम्प्लीमेंट एवरी स्किन टोन। एंड इसमें भी तुम लोगों को बहुत सारे शेड्स मिल जाएगी स्टेको में, बट ये वाली जो शेड है ना पिंक डिवा, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक कलर है, अगर फेयर स्किन टोन के हो ना देन बहुत ही अच्छे से तुम्हारी स्किन को ये कॉम्प्लीमेंट करेगी। एंड दोनों ही एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है, लाइक ये सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड है, ओके। बट द थिंग इज़ कि ये मैट ब्लश है, तो अगर मैट ब्लश पसंद करते हो देन गो फॉर दिस वन। अगर तो इसे शिमरी ब्लश चाहिए हो देन ये ले सकते हो। ऑल दो इसमें शिमर पार्टिकल्स तो है बट एप्लीकेशन के बाद उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है। तो ये दो ब्लशेज हैं, जो भी पसंद हो वो ले सकते हो। अभी आते हैं हाइलाइटर्स पे, जो कि आई गेस ऑलमोस्ट सारे गर्ल्स की फेवरेट पार्ट होती है। तो ये है NY बेस शाइन एंड शिमर हाइलाइटर एंड दिस इज इन द शेड B001 एंड द सेकेंड हाइलाइटर दैट आई हैव इज दिस मार्स हाइलाइटर इन द शेड 03 प्राइवेट शो। ये सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड है कंपेयरिंग टू दिस वन। अगर तुम लोगों को उतनी पिगमेंटेड हाइलाइटर्स पसंद नहीं है, तो जैसे सटल ग्लो पसंद आती है देन गो फॉर दिस वन, ओके। दोनों में ही कोई भी की ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, दोनों ही इजीली अप्लाई हो जाती है, ब्लेंड हो जाती है। इनफैक्ट ये जो मार्स के हाइलाइटर है ना, इसको तुम अपने फिंगर टिप से भी ब्लेंड कर सकते हो। Now let's move on to the eye makeup products and let's start with the brows. So here I have two options. The first one is this Stay Brow and To Be Wild Eyebrow Pencil and the second one is this Mars the Eyes Kit. अगर बिगिनर हो, प्रॉपरली ब्राउज फिल करनी नहीं आती है देन गो विथ अ पेंसिल, ठीक है। इससे पहले प्रैक्टिस करो एंड देन शिफ्ट टू अ पाउडर और अ पोमेड। पेंसिल्स आर ग्रेट फॉर डेली यूसेज एंड ये जो कलर है ना, ये ब्यूटीफुल ऐश लाइक डार्क ऐश ब्राउन कलर है, जो कि अगेन हर एक स्किन टोन के साथ चली जाएगी। फिर भी मैं ये मार्स की आइस किट के ऑप्शन दे रही हूँ बिकॉज इसमें दो आईब्राउ पाउडर्स मिल जाती है। पोमेड से ज़्यादा पाउडर यूज़ करना मैं प्रेफर करूँगी अगर बिगिनर हो।
दोनों शेड से एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है, सो केयरफुली यूज़ करना। मैं ये डार्क शेड को मेरी ब्राउज फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ, एंड अगर बहुत ही नेचुरल सटल लुक चाहिए हो तो फिर मैं ये ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ। In case you have thick bushy eyebrows, then always go for a pencil. Don't use pomades or powders. For the eyeshadow, I have these two options. First one is this Mars Mesmerize eyeshadow palette. Trust me guys, Mars की हर एक eyeshadow palette extremely pigmented होती है. You will not regret after buying Mars eyeshadow palette. देन वी हैव दिस NY Bay आई लव आई शेडो पैलेट। इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, बट ये जो ब्लैक वन है ना, ये सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड है। मेरे पास बाकी कलर्स भी है, बट उनमें क्या होती है कि कुछ शेड्स ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी पैची है, बट ये वाली जो पैलेट है ना, इसके सारे शेड्स इवनली पिगमेंटेड है। एंड मार्स के आई शेडो के बारे में मैं क्या बोलूँ गाइज, इट्स सो गुड। जैसे कि मैंने बोला कि मार्स के अगर आई शेडो पैलेट लेते हो ना तो फिर रिग्रेट नहीं करोगे। अगर कन्फ्यूज हो, कुछ भी मत सोचो, go for a Mars eyeshadow palette and you will thank me later. For the eyeliner, I have a liquid eyeliner and a pen eyeliner. Liquid eyeliner है Lakme की, which is the iconic eyeliner, and pen eyeliner है Inside Cosmetics की। बिगिनर्स के लिए पेन आईलाइनर्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू गो विद, बिकॉज इससे विंग्ड आईलाइनर्स बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। या तो शेकी हैंड की अगर प्रॉब्लम हो देन प्रिसाइजली आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो, बट अगर लिक्विड आईलाइनर लेनी हो देन यू कैन गो फॉर द लैक्मे आइकॉनिक आईलाइनर। इसकी वांड बहुत ही प्रिसाइज है, दैट्स वाई इवनली एंड प्रिसाइजली आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हो। ये स्मच प्रूफ है, पिगमेंटेड है, ट्रांसफर प्रूफ है, बट ये ना थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश प्रोवाइड करती है। आई एम समवन हु ऑलवेज प्रेफर यूजिंग मैट लाइक चेट मैट ब्लैक आईलाइनर्स। तो अगर वैसे हो देन पेन आईलाइनर ले सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है बट हाँ थोड़ी सी ग्लॉसीनेस प्रोवाइड करती है जो कि ब्यूटीफुल दिखती है ऑब्वियसली। तो ये गई दो आईलाइनर्स। अगर कलरफुल आईलाइनर्स लेनी हो देन वो भी ले सकते हो थोड़ी सी फंकी लुक के लिए, बट ब्लैक आईलाइनर्स आर समथिंग दैट यू हैव टू हैव इन योर मेकअप वैनिटी। अभी थोड़े से सस्पेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। काजल्स मैं तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगी बिकॉज काजल्स के ऊपर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्द, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी मस्कारास देख लेते हैं। मेरे पास ये ऑप्शन है विच इज़ दिस NY Bay आई लव मस्कारा। इसके अगर वांड देखोगे ना, बहुत ही बिग लाइक वांड है, तो इससे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगी लैशेज़ को। अगर थिन लैशेज़ है तुम्हारी या तो बहुत ही शॉर्ट लैशेज़ है देन ये ट्राई कर सकते हो। देन आते हैं लिपस्टिक्स पे। मेरे चैनल पे ना बजट फ्रेंडली लिपस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी तुम लोगों के साथ शेयर किया था जहाँ पे मैंने अंडर 300 और 150 कुछ लिपस्टिक्स शेयर किया था, तो उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, बिकॉज वहाँ पे ना मैं प्रीवियस मेरी बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स प्रोवाइड कर देती हूँ। तो लिपस्टिक के लिए मैं सिर्फ ये 3 ऑप्शन से दे रही हूँ। तो ये है लैक्मे की फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर इन द शेड मॉव Ecstasy. The second one is this Inside Cosmetics non-transfer lip color in the shade Sugar Palm, and the third one is this Swiss Beauty non-transfer waterproof lipstick. There are few people who prefer bullet lipsticks more than liquid matte lipsticks, तो दैट्स वाई मैंने एक बुलेट लिपस्टिक भी इंक्लूड कर दी थी वीडियो में। ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है, बट इनिशियली जब अप्लाई करोगे ना वो ट्रांसफर हो जाती है अगर पहले बहुत ज़्यादा डब करते हो, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि ये ड्राई हो जाए एंड देन ये नॉन ट्रांसफर हो जाती है। मैट फिनिश प्रोवाइड करती है बट लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं कर देती है, मॉइस्चराइजिंग मैट इफेक्ट प्रोवाइड करती है। इसको ना 2-3 बार रब करना पड़ता है टू गेट द मैक्सिमम पिगमेंटेशन, जबकि इनसाइड की ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन पे आप लोगों को वो ओपेक कलर मिल जाएगी। Lastly, for the makeup setting spray, I have this NY Bay matte finish setting spray and the Swiss Beauty makeup fixer enriched with aloe vera and vitamin E. Now, I have seen a lot of people skipping makeup setting sprays, but trust me, these products are equally important. मेकअप सेटिंग स्प्रे अगर यूज़ नहीं करोगे ना देन कुछ टाइम के बाद मेकअप केकी हो जाती है, या तो मेकअप प्रॉपर्ली सेट नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती है। So yeah, that's all. These are the few products that you can have in your makeup kit. अगर और कोई सजेशन हो then please leave them down below ताकि मुझे हेल्प हो जाए और मेरे जो अदर व्यूअर्स हैं उन्हें भी हेल्प हो जाए। See you guys soon. Bye and take care.